Okay, good morning, children. Good morning, ma'am. Okay, let us start. Okay, that day you have attended the class when I took from the school. Yes, ma'am. How was it? I think things were not clear, है ना? Yes, ma'am. Uh, how do you find this teaching through these PPTs? Ma'am, it's good rather than the board. Okay, चलिए तो विल कंटिन्यू विद दिस PPTs only. आपको आ रहा है सब चीज समझ में बेटा जैसे हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री आपको? यस मैम. यू आर बस एबल मैम टू कल अंडरस्टैंड? का एक बार और रिपीट कर दीजिएगा. ओके, चलिए ठीक है वो कर देते हैं. थोड़ा सा ही पोर्शन कवर हुआ था एंड दैट वाज नॉट वेरी क्लियर. देयर वाज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस that I am going to repeat. So I am starting with the panchayats and the headline. Okay. Okay, ma'am. The village panchayat was a very powerful association or organization in the medieval India. ठीक है, आप सबको पता है कि विलेज लेवल पर पंचायत की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है. ओके. Generally, the village panchayat was an assembly of important and respected elders of the village having hereditary rights over their property. ठीक है, जिनके पास लैंड होती है, अपनी मकान होता है वहाँ खूब बड़ा सा, इन लोगों को ही इसका पार्ट मानते हैं पंचायत का. ठीक है, उन्हीं लोगों को इसके लिए कंटेस्ट के लिए ओके करा जाता है कि हाँ वही लोग इसका पार्ट बन सकते हैं. Thus the village panchayat function as an oligarchy representing various castes and communities of the villages. Okay, तो ये आपका oligarchy means कि many people used to rule. Oligarchy जो kingdoms होते थे वो कैसे होते थे? Not only the king, one king, many people used to rule the kingdom. ठीक है, the same way it is oligarchy in nature. Okay, और बहुत सारे कास्ट एंड कम्युनिटीज के लोग मिलकर के इस काम को करते हैं. But as has been mentioned, the menial come agricultural workers perhaps were not given the representation in the panchayat. ठीक है, but जो आपके low caste people or those who are doing very menial work है ना, जो बहुत छोटे काम करते थे, those who are not having land, they were working as laborers, वो इस पंचायत का पार्ट नहीं होते थे, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे. ठीक है, एंड ओलिगार्की का हमने बताया कि वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज के पीपल होते थे, तो यू कैन से इट इज ए हेट्रोजेनस ग्रुप. ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग होते थे. देन एवरी पंचायत हैज हेडेड बाय हेडमैन हु वाज नोन एज मुकद्दम और मंडल. ठीक है, हेडमैन के साथ साथ उसको मुकद्दम या मंडल भी बोला जाता था. We come to know from the contemporary sources that the headman was chosen by the village elders. Okay, then this choice was to be ratified by zamindars, and the headman could hold his office as long as he enjoyed the confidence of the village elders, and he had to lose his position if he failed to win the confidence of the elders. Right, children? कि जो elders of the village थे वो उसको चूज करते थे कि हु विल बी द हेड, और उसके बाद जो बिग जमींदार होते थे दे ऑल्सो रेटिफाइड कि हाँ ही इज ओके. उनका भी उसमें परमिशन एक तरीके से या उनका भी कंसेंट जरूरी होता था. और जब तक उनको उन विलेज एल्डर्स का सपोर्ट मिलता था तब तक वो अपनी हेडमैन की पोजीशन पर बने रहते थे. एंड वंस ये कॉन्फिडेंस अगर खत्म हो जाता था देन ही हैज टू lose his position, or you can say he is dismissed from the post of the headman. The then we see the functions and the sources of the income of the panchayat. The panchayat was responsible for the administration of the village. All the functions such as security, health, cleanliness, primary education, law and order, irrigation, construction work, recreation, and making arrangements for the moral and religious upliftment of the masses were performed by the panchayat.
ओके चिल्ड्रन, ये सारे के सारे काम वो करते थे। ठीक है, इन जनरल जो भी काम हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं ना, पढ़ना बच्चों के लिए ज़रूरी है, इरिगेशन क्योंकि एग्रीकल्चर वर्क करा जाता है तो उसके लिए केनाल कंस्ट्रक्ट कराना, है ना, बंध्स बनाना, ये सारे काम वही लोग करते थे। पंचायत, one of the main functions of the headman was to keep accounts of the income and the expenditure of the village। ठीक है, साथ साथ उनको जो मेन इनका वर्क था वो यही था कि वो अपने अकाउंट्स रखते थे, ठीक है, मेंटेन करके, और इनकम का और कैसे उसको उन्होंने खर्च किया है। एंड टू हेल्प हिम इन दिस वर्क वन अकाउंटेंट और द पटवारी वाज आल्सो देयर। ठीक है, एक पटवारी या वो उनको हेल्प करता था इस काम में कि किस तरीके से ये चीज़ें करी जा रही हैं आपकी। ओके। अच्छा, ईच पंचायत हैड इट्स ओन फंड्स। हर विलेज में उनका अपना एक फंड होता था। ऑल द विलेजेस contributed to a common financial pool। All expenditures of the पंचायत were met from these funds। ठीक है, पंचायत जो भी काम करती थी इन फंड्स के थ्रू ही करती थी। The cost of entertaining revenue officials visiting the village from time to time were also met from the funds of the panchayat, and these funds were also used to meet the expenses for community welfare activities and to tide over natural calamities such as floods. For instance, the tasks like construction of a barrage, digging a canal, which peasants usually could not afford to do at their own, were also accomplished from the funds of the panchayat। ठीक है, क्या किस किस चीज़ के लिए उनका फंड्स यूज किया जाता था? वन वॉज योर एंटरटेनिंग द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्शन जो आपके ऑफिशियल्स होते थे वो बीच बीच में गांव में आकर के देखते रहते थे कि उनकी क्रॉप सही से ग्रो कर रही है या नहीं है, तो उन सब को भी एंटरटेन करने में जो खर्चा आता था, जो उनका एक्सपेंडिचर होता था, दैट इज टेकन फ्रॉम दिस फंड। ओके। देन इफ सम नेचुरल कैलेमिटी इज देयर ड्यू टू द फ्लड्स, है ना, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब चीज़ें उन सब के लिए भी इसी फंड को यूज़ करते थे वो अपना। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बंड और डिगिंग ए कैनाल, जो काम एक इंडिविजुअल अपने आप नहीं कर सकता, जो लार्ज स्केल का वर्क होता था, फॉर दैट दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वो काम भी आपके इन्हीं फंड्स के थ्रू करा जाता था। और यू कैन से इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल विलेज। अगर केनाल बन रही है तो इट विल बी यूज्ड बाय एवरीवन फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स, राइट। तो ये सारे काम आपके विलेज वेलफेयर या कॉमन वेलफेयर के होते हैं। देन पंचायत वर्क एज ए रेगुलेटर ऑफ द विलेज कम्युनिटी। ठीक है, वो उनको पूरा कंट्रोल चेक करके रखती थी कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। द मोस्ट important फंक्शन ऑफ द पंचायत was to regulate the village community। The panchayat ensured that various communities inhabiting the village were upholding their caste limits and were following their caste norms। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट कास्ट के लोग हमने बताया था ना, और उस समय तक आपका ये जो वर्णा सिस्टम था, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में मायने रखती थी। नाउ विद द एजुकेशन और ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे हटती जा रही हैं। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ एवरीवन। सोसाइटी में सब लोग आराम से मिल करके रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनका कहना था कि जो कास्ट नॉर्म्स हैं उनको अच्छे से सब फॉलो करें। दिस वॉज सीन बाय द पंचायत। Thus, to oversee the conduct of the members of the village community in order to prevent any offense against their caste। ठीक है, ये विलेज हेडमैन या मंडल की ड्यूटी होती थी। We should remember that the caste norms were very rigid in the Hindu society। All marriages were held in the presence of the mandal in the eastern India। ठीक है,
कि अपनी ही कास्ट में लोग बाग शादी करते थे उस समय तक, और इसीलिए जो काम मैरिज है वो आपके हेडमैन या मंडल के प्रेजेंस में होती थी कि यस एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन ए करेक्ट वे. The person violating the caste norms in the way had to undergo hard punishment. हमने बताया ना बहुत ज़्यादा strict punishment भी उनको दिए जाते थे. The panchayat could impose a fine on him or could expel from the community. ठीक है, या उसको गांव से ही बाहर निकाला देते थे, तो उसको आउटकास्ट कर देते, आउट ऑफ द विलेज भेज देते थे. द एक्सपल्जन फ्रॉम द कम्युनिटी कुड बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, इन वेरी सीवियर केसेस. ठीक है, लाइक द अक्यूज कुड नॉट ईट विद द अदर कम्युनिटी मेंबर्स. ठीक है, वो और कास्ट के लोगों के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, अपने कास्ट के लोगों के साथ बैठ करके खा पी नहीं सकता था. उसके साथ और कोई उसके साथ मैरिज के रिलेशंस नहीं बनाएगा, मैट्रिमोनियल अलायंसेस उसके साथ बंद हो जाते थे. ठीक है, एंड ही वॉज नॉट इवन एबल टू कंटिन्यू हिज प्रोफेशन इन द विलेज. ठीक है, जो वो अपना काम कर रहा होता था उस समय पर विलेज में, वो भी बैन कर दिया जाता था. Okay, though this is not for the whole life, this punishment was given, such punishments were given for a limited period, कि एक महीने के लिए उनको ऐसा करा जा रहा है, एक साल के लिए ऐसा करा जा रहा है, like that. And the main objective behind this was, that objective of these rules and regulations was to control the violation of caste norms. कि अगर इतने strict punishment मिलेंगे तो लोग बाग क्या करेंगे, वो caste norms को strictly follow करेंगे. And this is the way the to maintain law and order in the society, और society अपना smoothly work करती रहेगी. Then other than this village panchayat, okay, your caste panchayat या jati panchayat was also there, and everyone has to uh, mm, follow the rules of the village panchayat as well as the rules of their jati panchayat also. The jati panchayat had a lot of importance and power. And we'll see the example of the Rajasthan. If some civil disputes were there between the members of the different caste, that is solved by these jati panchayats. Ownership issues related to the land were also settled by the caste panchayat. One of the main function of the caste panchayat was to regulate the behavior and the activities of its members, कि वो जाति पंचायत के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चले. They not only laid stress but also made sure that the caste norms were being followed in a matrimonial allowances. ठीक है, वो ये नहीं कि उन्होंने रूल बना दिया, इट वॉज सिंपली ओके, बट वो पूरा देखते थे कि ये चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हो रही हैं सोसाइटी में या नहीं. It also decided that how much importance would be given to a particular person in the village functions. ठीक है, अगर कोई रिचुअल सेरेमनीज हैं तो कौन पर्सन उन रिचुअल सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज करेगा, द रिस्पेक्टेड एंड द एल्डरली पर्सन्स. ठीक है, वो इन सब चीज़ों को देखते थे. और यू कैन से कि जो जाति पंचायत है, एक्सेप्ट फॉर द क्रिमिनल केसेस, जितने भी मैटर्स हैं कास्ट से रिलेटेड, उन सबको लुक आफ्टर करती. एंड साथ साथ जो आपकी कास्ट पंचायत है, प्रोटेक्टेड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड रेज्ड वॉइस अगेंस्ट एनी इनजस्टिस कॉज टू देम. ओके, राइट चिल्ड्रन, कि ऐसा नहीं है कि कास्ट पंचायत केवल उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स ही बनाती थी, बट वो उनको सपोर्ट भी करती थी. इन केस अगर उनके साथ कुछ गलत होता था तो कास्ट पंचायत उनको सपोर्ट करके उनके साथ मिलकर के आवाज़ उठाती थी. और इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इन द आर्काइव्स ऑफ दिस महाराष्ट्र एंड राजस्थान, है ना, देयर वर मेनी पिटीशंस रिलेटेड टू दिस. ओके, many such petitions or complaints have been found.
in the archival records from the Western India, especially from the Rajasthan and Maharashtra, it is worth mentioning such petitions were generally made by those villagers who were at the lowest rung of the rural society, है ना? नॉर्मली जो आपके लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको जब अपर कास्ट के लोग अननेसेसरी सप्रेस करते थे तो वो उनके अगेंस्ट अपनी ये पटिशंस डालते थे. दीज पटिशंस वर मेड कलेक्टिवली एज वेल, और या कोई एक इंडिविजुअल भी अपनी एप्लीकेशन उसमें पटिशन डाल सकता था. ठीक है कि हाँ मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है. एंड समटाइम्स ये जो पटिशंस हैं ये प्रोटेस्ट एंड रिजेंटमेंट of the members of a particular caste or community against morally illegitimate demands made by the elite groups, also demand of justice through their caste पंचायत. ठीक है, और कई बार जब उनके साथ ऐसा कुछ होता था तो वो अपनी कास्ट पंचायत को अप्रोच करते थे एंड कलेक्टिवली उनके लिए पटिशंस डाली जाती थी, like demand of excessive tax made by the state. The elite Excuse me, ma'am. groups. हाँ बेटा. Yes. ओके. Ma'am? हाँ लॉक हो जाता है आफ्टर 10 मिनट्स ना. आप खोल रहे हैं. यू आर आस्किंग फॉर Yes. सुमंत ना. यस. Yes, ma'am. ओके. यस नाउ ही कैन जॉइन. ही इज एबल टू जॉइन ना. Ma'am. ओके. यस सुमंत यू आर हियर. Yes, ma'am. Good ओके. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ ठीक है बेटा. और ऐसे ही कई बार ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज होती थी, जैसे अभी हमने फ्लड का एग्जांपल दिया था, एंड सम टाइम ड्रॉट सूखा पड़ जाता था, है ना. एंड एट द टाइम ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू पे द रिवेन्यू, है ना. और उनके साथ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करी जाती थी कि नहीं दे हैव टू पे द रिवेन्यू एट एनी कॉस्ट, तो अब ऐसे में तो पॉसिबल नहीं था उन लोगों के लिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा है, तो हाउ कैन दे पे द रिवेन्यू इन सच अ केसेस. तो ऐसे में भी ये लोग अपना पटिशंस डालते थे कि हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले. ओके. द डिसीजन ऑफ द पंचायत varied from case to case. In case of excessive tax demand, the panchayat would often suggest a compromise. ठीक है, जैसे हमने कहा कि वो टैक्स की जगह डिमांड होती तो उनसे यही सजेस्ट करते थे कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो थोड़ा सा. आप मतलब जो रिवेन्यू ऑफिशियल्स थे उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप कम कर दो, और थोड़ा सा इनसे कहते थे कि चलो आप जितना दे सकते हो उतना दे दो, लाइक दैट. ओके. बट the peasants would take a very tough measures in the absence of compromise. पर अगर conditions ऐसी होती थी कि वो बिल्कुल compromise नहीं कर पा रहे हैं, in that case they leave the villages, they left the villages, they deserted the village. ठीक है, thus rendering it empty in order to register their protest. एक तरीके से वो अपना protest show करते थे कि वो गांव छोड़ करके ही चले जाते. ओके. हाउ दिस वॉज पॉसिबल, क्योंकि उस समय देर वॉज ए लॉट ऑफ कल्टिवेबल लैंड अवेलेबल एट दैट टाइम, है ना. ठीक है, पर हर जगह खेती नहीं होती थी. ओके. तो इट वॉज ईजिली अवेलेबल टू देम. और on the other hand there was competition in the field of labor. Thus peasants would use recourse of deserting the village as an effective weapon, है ना. अगर वो चले जाएंगे तो उनको अपनी फील्ड्स पर काम कराने के लिए फिर लेबर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इन सच ए कंडीशन वो अपना इस तरीके के वेपन्स को या इन तरीकों का इस्तेमाल करते. It is worth mentioning that the decision of the caste panchayat were not always impartial. ठीक है, और ये भी देखा है कि जो कास्ट पंचायत के कई बार डिसीजंस हैं दे आर नॉट इम्पार्शियल. ठीक है, उनमें कुछ अपना किसी को फेवरिंग एटीट्यूड रहता था. Often it would take lenient decision for influential and resourceful person, and sometimes the drastic punishment like was given to the some of the people due to their personal jealousy. Okay.
और यहाँ हम कह सकते हैं जो कास्ट पंचायत है ना, जो आपके रिसोर्सफुल रिच इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे, मोस्ट ऑफ द टाइम लो कास्ट के लोगों के कंपैरिजन में, या जो गरीब लोग होते थे उनके कंपैरिजन में उनको फेवर करती थी। ठीक है मैम। क्योंकि आपको पता है कि जो रिसोर्सफुल पर्सन है वो आपका कोर्ट में भी अपील कर सकता है ना, पर लो कॉस्ट पर्सन को ना तो वो इन चीज़ों के बारे में इतना अवेयर थे, और ना ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होती थी कि दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? यस मैम। शुड वी गो टू द नेक्स्ट हेडिंग नाउ? दैट इज योर विलेज आर्टिसंस, राइट चिल्ड्रन? ओके। ठीक है, okay children, as we have already been discussed that the medieval India was an agricultural country. ठीक है, majority of the people lived in the villages and was associated with agriculture, but the activities of the agriculture could not be carried out without the help of some craftsmen and artisans, है ना? जैसे हमें पता है कि कोई भी अगर एक काम है ना, तो वो केवल एक पर्सन इंडिविजुअली नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ विल टेक द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। दे नीड द इम्प्लीमेंट्स, है ना? खेती वो अपने हाथों से नहीं कर पाएंगे खाली, उनको उसके लिए दे नीड अ प्लो, स्पेड, है ना? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ेंगी, तो दे नीड द हेल्प ऑफ द क्राफ्ट्समैन, राइट चिल्ड्रन? Their cooperation was also required for the fulfillment of the several other needs. जैसे कपड़े के लिए उनको वीवर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना? जो हमारी अपनी बेसिक नीड्स हैं उन सबको, मकान बनाने के लिए मैसोन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ लकड़ी की चीज़ बनवानी है तो कारपेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट बेटा? The elaborate relationship of exchange between different producers was an interesting aspect of the rural life. The Marathi documents and the village surveys conducted during the early years of the British rule, okay, suggest that the artisans and the craftsmen in large numbers lived in the villages, and some of the villages they formed about 25% of the total population. ठीक है, इनका जो नंबर था वो काफ़ी था, और किसी किसी विलेज में ये अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हुआ करती। It was not easy to make a distinction between the peasants and the craft persons. ठीक है, और ये जो पीजेंट्स हैं एंड क्राफ्ट पर्सन है, इनके बीच में हम बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। रीज़न भी कि बहुत सारे आपके जो पीजेंट्स थे, है ना, दे वर डूइंग बोथ द वर्क, दे वर डूइंग द वर्क ऑफ peasant as well as the work of the artisan or the craft person both. Okay, तो हम कह सकते हैं कि it was a fluid thing, you cannot discriminate between these two persons. The peasants kept themselves engaged in several activities such as dyeing, textile, printing, baking and firing of pottery, making and repairing agriculture implements, etc. During the period they were free from the agricultural activities. ठीक है, ऑल ऑफ यू नो कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी थ्रू आउट द ईयर आपका टाइम नहीं डिमांड करती हैं, आपका वर्क नहीं डिमांड करती हैं, है ना? जब आपने सीड बो दिया उसके बाद थोड़े समय किसान जो लोग हैं खाली रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में वो जैसे कपड़े रंगने का काम, टेक्सटाइल प्रिंटिंग का काम, है ना, मिट्टी के पॉटरी, बेकिंग एंड फायरिंग ऑफ पॉटरी मीन्स बट मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की रिपेयर करने का काम। ठीक है, ऐसे काम अपना किया करते थे सो दैट दे कुड हैव अ सप्लीमेंट इनकम। सोइंग एंड वीडिंग के बीच में उनके पास टाइम होता था, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग के बीच में उनके पास टाइम होता था, राइट चिल्ड्रन? Most of the artisans and the craftsmen living in the village would work to fulfill the needs of the villagers. Blacksmiths and carpenters, ठीक है, were some uh, of such artisans whose services were often regularly required by the peasants. ठीक है, ये लोग ऐसे थे जिनकी की हर समय ही गांव में ज़रूरत पड़ती रहती थी।
दे वर मोस्टली पेड इन काइंड, ठीक है, कई बार उनको काइंड में ही पे कर दिया जाता था। जैसे कि उनसे वो अपना पूरा ईयरली काम कराते थे, और जब आपका हार्वेस्टिंग का टाइम होता था तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्रेन्स या जो भी चीज़ उनकी फील्ड में प्रोड्यूस हो रही है वो उनको दे दी जाती थी। एंड आफ्टर दैट, in exchange of this, they will provide the free services throughout the year to that person. Okay, जो आपके मोस्ट ऑफ द आर्टिसंस, इनकी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होल्डिंग्स होती थी लैंड की, एंड वर ईदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लैंड रिवेन्यू और दे हैड टू पे मच लेस रिवेन्यू फॉर देम, ठीक है। जब लैंड होल्डिंग इतनी कम होती थी तो या तो उन्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ता था या बहुत कम अमाउंट में देना पड़ता। ओके, और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता था कि ये जो आपके आर्टिसंस हैं, है ना, इनको एक लैंड ग्रांट कर दी जाती थी, राइट, कि जैसे उन्होंने पूरे साल काम किया है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुछ कल्टीवेबल लैंड है ना, ठीक है, तो उसके बाद ऐसी भी लैंड थी जहाँ पर लैंड वो कल्टीवेबल तो होती थी बट इट रिमेन्ड वेस्ट, मीन्स उस पर खेती नहीं करी जाती, ठीक है। जैसे हमने भी पहले भी बताया आपको कि जब व्हेन दे यूज टू लीव द विलेज तो उनके पास यही ऑप्शन होता था कि वहाँ ये जगह छोड़ करके, थोड़ा उनको मेहनत तो पड़ती थी, दूर जाना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था, पर वो उस खेती जमीन पर खेती करने लगते थे। तो ऐसे ही इन आर्टिसंस को भी कुछ लैंड अलॉट कर दी जाती थी, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो ये लैंड इनको अलॉट करी जाती थी, इट वाज नोन एज मीराज और वतन ऑफ द आर्टिसन, ठीक है। और ये लैंड उनकी अब हेरिडिटरी राइट उसका इस लैंड के ऊपर हो जाता था कि उनके बाद ये लैंड उनके आगे वाली जनरेशन को मिल जाए, राइट चिल्ड्रन। द सेम सिस्टम इज इन सम चेंज फॉर्म्स, ठीक है, is was in prevalence in other parts of the country. In some villages, an artisans and individual peasants households entered into a mutually negotiated system of remuneration. Under that, generally the services were exchanged for goods. We come to know from the 18th century records that the zamindars in Bengal used to pay a small daily allowance and the diet money. Okay, एक तो हमने बताया कि उनको लैंड अलॉट हो जाती थी, दूसरा उनको एक पे करने का, रेन्यूमरेशन का एक अलग तरीका फॉलो करा जाता था, ठीक है, कि सर्विसेज के एक्सचेंज में उनको कुछ तो अलाउंस दे दिया जाता था और साथ में डाइट मनी, जो उनका खाने की ज़रूरतों को पूरा करा जा सके इतना मनी उनको दे दिया जाता था, टू आर्टिसंस लाइक ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड इवन गोल्ड स्मिथ्स फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। और ये जो इस तरीके से उनको डेली अलाउंस या डाइट मनी दिया जाता था, दिस सिस्टम वाज नोन एज जजमानी। क्या बोलते थे सिस्टम को? यस, जवानी। जजमानी सिस्टम बोला जाता था इसको। एंड ये आपका ये 16th एंड 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यूज में नहीं था, राइट चिल्ड्रन। ओके बेटा, क्लियर अबाउट दिस village artisans. Now we'll come to the नेक्स्ट हेडिंग। इसमें देखिए आपका दिखा रहे हैं कि ये बहुत सारे ये लोग काम कर रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन्स यहाँ पर। ठीक है, ये एक पर्सन बैठ के उनको यहाँ ये सुपरविजन हो रहा है और यहाँ पर पूरे के पूरे काम कैरी करे जा रहे हैं। ये कपड़े जैसे वॉशरमैन है, कपड़े धोने के लिए ले जा रहे हैं, कहीं पर ये कपड़ों को प्रिंट करा जा रहा है, कहीं पर डाइंग का काम करा जा रहा है, लाइक दैट, है ना। यहाँ पर ये डाइंग का काम हो रहा है, यहाँ पर कपड़े को स्प्रेड करा जा रहा है। ओके, now we will see the next heading, women in the agrarian society. Okay,
women played an important role in Indian agrarian society during the medieval period. Women belonging to the peasant families, ठीक है, participated in agricultural activities, agriculture produce and worked shoulder to shoulder with men in the fields. ऐसा नहीं था कि उस समय लेडीज केवल घर का ही काम करती थी, बल्कि वो खेतों में जा कर के भी बराबर का अपना कंट्रीब्यूशन देती थी. The work of tilling and plowing the field was performed by men. जो थोड़े डिफिकल्ट टास्क होते थे वो ये men करते थे. And the women particularly did the work of sowing, weeding and harvesting. ये काम women करती थी, है ना. सोइंग का काम, बीज बोते हैं हम. वीडिंग अननेसेसरी जो क्रॉप उग जाती है उसको निकालने का काम. और हार्वेस्टिंग जब फसल पक जाती थी तो उसको काटने का काम. एंड ऑल्सो इन द वर्क ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग, है ना. उसमें से जैसे आपके गेहूं होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, उसको हटाना और उसको साफ करना, उसपे से जो भूसा होता है उसको अलग करके गेहूं को अलग निकालना. ऐसे ही चावल को भी मूंजी ओत कहलाती है वो, है ना, उसमें से अलग करने का काम ये आपका थ्रेशिंग एंड विनोइंग का काम कहलाता है. ओके. In fact, the labor and the resources of entire household had become the basis of the production with the growth of the villages and expansion in the individual peasants farming ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी. ठीक है, मतलब एक तरीके से यह है कि पूरी की पूरी फैमिली प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व हो जाती थी. Therefore, it became quite difficult to draw a divisive line between the spheres of the work. ठीक है, तो हम ये कह दें कि विमेन घर का काम करती थी और मैन बाहर का काम करते थे. इस तरीके से एक हम क्लियर कट डिफ्रेंशिएट उन चीज़ों में नहीं कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. However, it should be kept in mind that the biases related to women's biological functions still remain in the existence. ठीक है, कुछ आपके biological functions ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ों के लिए उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता था. ठीक है, तो वो चीज़ें भी उस समय प्रेवलेंट थी सोसाइटी में. फॉर इंस्टांस इन द वेस्टर्न इंडिया मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन could not touch the plow or the potter's wheel, है ना. ये माना जाता था कि अगर कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में कोई लेडी जो मिट्टी बनाने वाला उनका बर्तन है वो पॉटर व्हील होता था उसको नहीं टच करेगी. और ऐसा ही बंगाल में उनके लिए कहा जाता था कि जो आपके पान के उनके ग्रोव्स हैं, है ना, वो वहाँ पर नहीं जाएगी. इस चीज़ को गलत माना जाता था. दो दिस वॉज ए बायस, है ना. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ वाकई में ऐसा कुछ उनको हार्म करती थी, बट जैसे हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस चले आते हैं, ठीक है, सुपरस्टिशंस भी कह सकते हो आप, जैसे लोग बाग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो चीज़ उस समय ये सब चीज़ें मानी जाती थी. सम एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन स्पेशली आर्टिसनल टास्क लाइक स्पिनिंग yarn, ठीक है, सिफ्टिंग एंड नीडिंग क्ले फॉर पॉटरी एंड एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा वर थॉरोली डिपेंडेंट ऑन फीमेल लेबर. ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे काम थे. जैसे पॉट्स तो मेल मेंबर्स बना रहे हैं बैठ करके, है ना. और उससे पहले मिट्टी को छानने का काम होता था, उसको गूंथा जाता था, जैसे आटा करते हैं ना, उसको क्ले को तैयार किया जाता था, वो सारा काम, है ना. कढ़ाई खेल का काम करने का, कपड़ा के लिए धागा बनाने का काम, ये सारे काम कौन करती? फीमेल्स करती. It seems that the demands on women labor started growing with the commercialization of the product. और यह हम भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन होने लगा प्रोडक्ट्स का तो विमेन की लेबर की डिमांड भी बढ़ती चली गई. The peasant and the artisans women worked in the field, went to the houses of their employees and also went to the markets in order to sell their products. ठीक है, जो आपके peasants एंड आर्टिसंस है ना, ये विमेन होती थी, ये फील्ड में तो काम करती करती थी. और जिन लोगों की फील्ड में काम करती थी कई बार इनको उनके घर पर जा कर के भी काम करना पड़ता था, अपने एम्प्लॉयर के घर पे जाके भी काम करना पड़ता था. और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो मार्केट में जा कर के जो जैसे उन्होंने धागा बनाया है ना, एम्ब्रॉयडरी का कोई प्रोडक्ट है, उनको सेल भी करती थी. राइट चिल्ड्रन, तो यू कैन से कि हाउ टफ doing all these things for a women in the agricultural society.
Okay, it is worth mentioning that the women were childbearers and they were regarded as an important resource in the society dependent on labor. ठीक है, विमेन जो है ये भी माना जाता था, I opened the wrong page. So you can just go through it, then I'll shift to the next page. है ना? This is all what we have studied, है? Kneading of clay for pottery and all. ठीक है? ओके, नाउ विल मूव द नेक्स्ट वन। इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि वो जैसे यहाँ पर ऊपर वाले पिक्चर में दिख रहे हैं कि वो कुछ अपना पत्थर वगैरह ले जाने का काम कर रही है कंस्ट्रक्शन साइट पर, है ना। नीचे वाले उसमें दिखा रहे हैं कि देवर ब्रेकिंग द स्टोन्स, है ना, पत्थरों को तोड़ रही हैं। दोनों आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स के सीन है और दोनों जगह एक जगह तो वो अपने सर पर जैसे ईंट वीट रख के या पत्थर रख के दूसरी जगह पहुंचाते हैं वो काम कर रही हैं, दूसरी जगह बैठ करके वो अपना स्टोन्स को तोड़ने का काम कर रही हैं और एक जगह जैसे वो रेता वगैरह को छानते हैं वो चीज़ें काम कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट योर चिल्ड्रन इन द पिक्चर। समझ आ रही हैं चीज़ें आपको? Yes, ma'am. ओके, इट इज़ वर्थ मेंशन, हाँ ये तो हाँ, we were saying कि that women were the child bearers and they were regarded as an important resource in the society because जो हमारी वहाँ एग्रीकल्चरल सोसाइटी है it is dependent on the labor. ठीक है, but the because of the frequent pregnancies, malnutrition and death during childbirth, the majority mortality rate among women was very high. ठीक है, क्योंकि पुराने समय में तो लेडीज़ अपनी खाने पीने पर इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं दिया जाता था, दे वर निग्लेक्टेड मोस्ट। और जो देर इज़ ए वेरी लेस गैप बिटवीन द टू चिल्ड्रन, तो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से मैनी वीमेन डाइड एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो इसलिए उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। Thus, the number of married women or the wives in the society was small. तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ वुमेन है वो काफ़ी कम था सोसाइटी में। Some social customs came into the prevalence in the peasant and the artisans communities which were not considered as good or civilized by the elite groups. ठीक है, कुछ चीज़ें जो कि और हायर सोसाइटी में नहीं होती थी, अपर कास्ट में नहीं होती थी, वो इन लोगों में प्रेवलेंट होने लगी थी लो कास्ट के उसमें। लाइक मैनी रूरल कम्युनिटीज स्टार्टेड पेइंग ब्राइड प्राइस फॉर मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, कि जैसे हमारे यहाँ उस समय एक वो होता है ना कि डाउरी दी जाती है लड़के की फैमिली को, पर वहाँ पर उल्टा हो रहा था कि विमेन की फैमिली को पैसा दे करके उससे शादी करी जाती थी, ब्राइड का प्राइस दे करके उससे शादी करी जाती थी। जैसे अभी हमने देखा ना कि आपकी विमेन का नंबर कम होता जा रहा था, है ना, कि ड्यू टू द फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, माल न्यूट्रिशन एंड मैनी वीमेन डाइड एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, है ना। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उनको इवन शादी करने के लिए ब्राइड का प्राइस पे करना पड़ता था। ठीक है, द विडोड एंड द डाइवोर्स वुमेन एज वेल could remarry and such marriages were considered legitimate। और आपने पढ़ा था पहले हमारे यहाँ पर ना विडो को रीमैरिज करना अलाउड नहीं था, है ना। ठीक है, या कोई डिवोर्स्ड वीमेन है तो वो भी अपना मैरिज नॉर्मली नहीं करती। ओके, पर अब इन सब चीज़ों के लिए अच्छे से परमिशन मिल चुकी थी बिकॉज ऑफ द number of the women was less. Much importance was provided to women's reproductive force. Men was considered the head of the household. The male members of the family and the community exercised their full control over women। ठीक है, जैसे हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उनके ऊपर विमेंस को उनके अंडर में रहना पड़ता है ना। क्या कहते हैं ना, बिफोर मैरिज दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर फादर्स एंड लेटर अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर हस्बैंड्स। Infidelity was considered as the greatest vice of the women and they could be punished
वेरी हार्शली फॉर इट। ठीक है, और उसके ऊपर किसी तरह का डाउट करा जाता था कि उसके कहीं रिलेशंस हैं। तो ऐसे केसेस में वुमेन को हार्श पनिशमेंट दिए जाते। The woman could complain in the panchayat against the misbehavior of her husband or his family and could seek compensation or justice. And even women को भी राइट था कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली की कंप्लेंट आपका विलेज पंचायत में कर सकती है। Several such petitions have been found in the documents from the many regions of the Western India, और ऐसे बहुत सारी petitions या documents आपके राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र से मिले हैं। In these petitions, the husbands have been accused by their wives of infidelity or negligence of the household. ठीक है, जहाँ पर उनकी वाइफ उनका कि वो अपना फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और दे आर हैविंग रिलेशन विद समवन एल्स, उन सब के लिए उन्होंने पिटीशंस डाली हुई थी। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द मेन वर नॉट ऑलवेज पनिश्ड इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जैसे हमने बताया था ना कि वुमेन के ऊपर तो जरा सा भी डाउट होता था तो दे वर सीवियरली पनिश। ठीक है, पर मेल मेंबर्स को हमेशा इन चीज़ों के लिए पनिशमेंट नहीं मिलता था बिकॉज our society was a male dominating society. However, the state and the superior caste group males always did try to ensure that the family was sufficiently provided for। बल्कि जो आपके अपर कास्ट के लोग थे है ना, वो लोग अपनी फैमिली को पूरा अटेंशन पे करते थे कि हाँ उनकी जितनी भी नीड्स हैं वो सब पूरा कर हो रही हैं। The status of the women in the society can be assumed from the fact that the contemporary documents do not contain the first name of the women। ठीक है, उसमें वुमेन को उसके नाम से नहीं जाना जाता था पर उसके हस्बैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप इसी से समझ सकते हो कि उनका क्या स्टेटस था। द वुमेन मेकिंग पिटीशंस और कंप्लेंट्स हैव बीन रेफर्ड टू एज द मदर, सिस्टर और वाइफ ऑफ द मेल हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, जो भी उनकी फैमिली का हेड होता था, ठीक है, तो उसकी वो मदर है, उस मेल मेंबर का नाम होता था कि उसकी मदर, उसकी सिस्टर या उसकी वो वाइफ है, इस तरीके से मेंशन करके उनकी पटिशंस मिली हैं। It appears that no importance was accorded to the independent existence of the women in the contemporary society। कि उस समय women की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। And it happens even in the middle class families. Though we should know that women enjoyed right to inheritance among the landed gentry, जिनके पास अपना लैंड वगैरह होती थी वहाँ पर वुमेन को राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिला हुआ था। We find several instances in the documents from the contemporary Punjab which ratify the rights of the women, particularly that of the widows as the sellers of their property inherited by them। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं जहाँ पर विमेन अपनी लैंड को सेल कर रही हैं, स्पेशली जो विडो विमेन होती हैं अपनी ज़रूरत के समय पर वो अपनी लैंड को सेल कर रही हैं। तो वो कब सेल कर सकती है लैंड को, जब वो लैंड उसके पोजेशन में हो। It clearly suggests that the right of the widow to the ancestral property after the death of her husband was recognized। ठीक है, कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो उस लैंड का मालिक बन जाती थी, ओनर बन जाती। Instances from the contemporary sources suggest that the several Hindus and Muslim women inherited जमींदारीज। ठीक है, वो जमींदार भी बनी थी, जमींदारी उनके इनहेरिट होके मिल रही थी। They could sell or mortgage these zamindāris, and we find mention of the women zamindāris in Bengal also। बंगाल में भी ऐसे जिम्मेदार women's थी। For example, ownership of the Rajshahi zamindari, one of the biggest and the most well known of the 18th century zamindari was with the women। ठीक है, और दोनों ही उसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स है ना, दोनों ही जगह विमेन को इन जो है वो अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिल जाता था जमींदारीज का, या जो उनको लैंड होती थी दैट दे हैव इन देयर कंट्रोल और इन देयर पोजेशन। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पार्ट चिल्ड्रन? यस बेटा। मैम हाँ,
Yes beta, any problem? Till not. Okay, but I have sent notes for this lesson, I think so, है ना? But source verse questions are not sent. Today I'm going to send you the source No, verse ma'am. questions. Okay. Okay, children. Okay, ma'am. That is, your now class is over. Have a good day and stay safe at your home and keep studying regularly, children. Okay, but bye everyone. Thank you, ma'am. Welcome. Welcome.